السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ سورہ حجرات ہے جو کہ آخر میں کل ہم نے تراویح میں یہ صورت مکمل کی تھی۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ اونچی مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے، مجلس میں بیٹھتے اور آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تو بعض لوگوں نے اپنی آواز اونچی کر دی نبی کی آواز سے، تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ نبی کی آواز سے زیادہ اونچی آواز مت کرو، یہ نبی کے حق میں گستاخی ہے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ نبی کا قول یا نبی کی کوئی حدیث آتی ہے تو وہاں پر بھی اس سے آگے بڑھ کر کے نبی کے قول کے مخالف کوئی بات پیش کرنا، یا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لینا، یہ بھی اس آیت کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچی کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ نبی کے قول کے سامنے، نبی کی حدیث کے سامنے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں کہ جو ہے نبی کی بات کو ہم نہیں مانوں گا، یا پھر فلاں امام کی بات یا فلاں عالم کی بات میں مانوں گا، تو اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ انسان جو ہے بعض اوقات سنت نبوی کے خلاف کام کرنے کی کوشش میں ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے کہ اس کے جتنے اعمال ہوتے ہیں سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں ان احادیث کے معاملے میں محتاط ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرت کے کچھ آداب بتلائے ہیں کہ آپس میں لوگ کیسے ہونا چاہیے، ان کے درمیان تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اور کیا برائیاں ان کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ اللہ نے ایک چیز بتلائی یہاں پر، وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آتا ہے، کوئی فاسق، تو آپ کسی بھی خبر کو آنکھ بند کر کے جو ہے قبول مت کرو۔ فتبینوا، آپ لوگ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ بغیر تحقیق کے ایسے جو ہے کسی بھی خبر کو مان لینا اور اس کو صحیح سمجھ لینا انسان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو ہر کوئی بھی آج کی دنیا میں، خاص کر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم آ چکا ہے یا بہت سارے ایسی ذرائع آ چکے ہیں، انسان کے پاس خبریں آتی ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں کہ انسان اس کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے، بعض اوقات اس کے ایمان کے لیے بھی وہ خطرہ ہو جاتا ہے اور اس کے عمل اور جو ہے اس کے علم کے لیے بھی وہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہم پاتے ہیں، مثال کے طور پر واٹس ایپ میں بہت سارے ایسی جو ہے حدیث کے نام پر بعض میسیجز ملتے ہیں، قرآن آیت کے نام پر بعض میسیجز ملتے ہیں، یا پھر علماء کے اقوال کے نام پر بعض میسیجز ملتے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں ہوتے ہیں، تو لوگ انہیں مان بھی لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی تحقیق ہونا چاہیے کہ کہاں تک صحیح ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے انسان کے اعمال جو ہے انسان جو ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کر سکتا ہے بعد میں کہ کاش میں ایک مرتبہ اس کو تحقیق کر لیا ہوتا۔ اس کے بعد یہاں پر اس صورت میں ایک اور اہم بات بتلائی گئی، وہ یہ کہ لوگ اگر لڑ رہے ہیں خاندانی میں، اگر آپ کے خاندان میں دو بھائی لڑ رہے ہیں یا کوئی رشتہ دار لڑ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ لوگ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ان لوگوں کے درمیان آپ اصلاح کیجیے، ان لوگوں کے جھگڑے کو ختم کیجیے اور ان لوگوں کو آپس میں ملائیے، کہا اللہ رب العالمین نے۔ اور آپس میں ملانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو ملانے کے لیے تھوڑی سی جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس جماعت کے پاس، اس آدمی کے پاس آ کر اس نے کہا کہ بھائی وہ فلاں آدمی جو ہے آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، آپ کے تعلق سے بہت اچھی باتیں بتلا رہا تھا، تو یہاں پر گرچہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن لوگوں کو ملانے کے لیے
इत्तिहाद इत्तिफाक के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए अगर इस तरह की बात करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल कज़्ज़ाब, कि वो आदमी झूठा नहीं है, क्योंकि वो लोगों को मिलाने के लिए थोड़ी सी बातें जो मिला करके पेश कर रहा है ताकि आपस में लोग मोहब्बत से जो है मिलजुल कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है यहां पर वही बयान फरमाया कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं लोग, तो आप लोग उनके दरमियान सुलह करवाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर दो तीन बड़ी अहम आयतें जो इंसानी मुआशरे के लिए बहुत ही जरूरी हैं बयान फरमाया कि लोगों में इस्लाह पैदा हो, लोगों में मोहब्बत अगर पैदा होना है तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो मुआशरे में नहीं होना है। अगर ये बुराइयां, ये बीमारियां अगर मुआशरे में रहेंगी तो फिर मुआशरे में मोहब्बत नहीं रहेगी, लोग लड़ते ही रहेंगे, झगड़ते ही रहेंगे। उन बुराइयों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा फरमाया कि आप लोग अपने दरमियान इन बुराइयों को मत रखिए। क्या बुराइयां हैं? अल्लाह ने फरमाया ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का मजाक मत उड़ाए, किसी भी चीज के एतबार से, किसी भी एतबार से दूसरे आदमी का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, ये मुमकिन है कि जो आदमी किसी आदमी का मजाक उड़ाता है तो वो आदमी इससे बेहतर होगा। इसी तरह औरतों के ताल्लुक से फरमाया अल्लाह ने वला निसाउम मिन निसाइन, कि कोई औरत किसी दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, मुमकिन है कि जिस औरत का मजाक उड़ाया जा रहा है वह औरत इस औरत से बेहतर होगी। तो इसलिए इस्लाम ने मजाक उड़ाने से जो है रोका है। मजाक उड़ाना ये मुआशरे में जो फितना और लड़ाई झगड़े जो है पैदा करने वाला एक सबब है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वला तलमिजू अनफुसकुम, कि आप लोग आपस में एक दूसरे को बुरा भला मत कहो। वला तनाबजू बिल अलकाब, और उल्टे सीधे नामों से मत पुकारो, गलत सलत नामों से मत पुकारो। अच्छे खासे नाम होते हैं लेकिन नामों को बिगाड़ करके जो गलत नामों से पुकारना ताकि जो उसको जो है तकलीफ पहुंचाएं, इस तरह के नामों से बचें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, क्या लोगों आप लोग जन जो बदगुमानी है उस बदगुमानी से बचो। बदगुमानी ये ऐसी चीज है कि ये लोगों के दरमियान बहुत सारी जो नफरतें, जो है आपस में जो है बहुत सारी बुराइयां दिलों में डालने के जो है ये पैदा करता है। इस मिसाल के तौर पर एक आदमी जा रहा है, वहां पर मेडिकल भी है और बाजू शराब की दुकान भी है। आदमी जा रहा है काम से मेडिकल की तरफ, लेकिन कोई आदमी ये ना समझे कि वो जो है जरूर जो है शराब की दुकान ही को गया होगा। इंसान जो है इससे बचे कि इस तरह उसके दिल में जो है गलत ख्यालात, किसी के ताल्लुक से बदगुमानी, कोई औरत जा रही है तो आदमी फौरन उसके बारे में फैसला ना करे कि गलत काम ही के लिए औरत जा रही है, या कोई मर्द कोई किसी की जगह पर जा रहा है जरूरी काम से, आदमी फौरन फैसला ना करे। तो किसी के ताल्लुक से बदगुमानी हरगिज नहीं रखना चाहिए, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन, कि बदगुमानी करना ये बाज़ औक़ात इंसान को जो है गुनाह का सबब बनता है। सिर्फ बदगुमानी, हम सोच लेने से भी, हमारा सोच लेना किसी आदमी के मुतालिक गलत सलत बदगुमानी करना, यह खुद जो है गुनाह का सबब है। और इसी तरह इंसान को यह भी चाहिए कि वो बदगुमानी का मौका भी नहीं देना चाहिए कि लोग उसके बारे में बदगुमानी कर सकते हैं, तो ऐसे मौके और ऐसी जगहों से बचना भी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंधेरा था, तारीकी थी, अपनी बीवी से गुफ्तगू कर रहे थे। दो लोग रास्ते से जा रहे थे सहाबा किराम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर कहा कि लोगों देखो मैं मेरी बीवी से बात कर रहा हूं। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या हम आपके बारे में शक कर सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप लोग शक नहीं करेंगे, लेकिन शैतान है जो आपके दिलों में वसवसा डाल सकता है, इसलिए मैंने जो है इस बात की वजाहत कर दी। तो इसलिए इंसान को जितना हो सके जहां बदगुमानी के इल्जामात के जो भी मौके हो सकते हैं उन मौके से भी बचना चाहिए, वरना इल्जाम अगर लग जाए इंसान पर तो फिर अपनी बरात का इजहार करने के लिए, अपनी सफाई के लिए इंसान कितनी भी कोशिशें करें बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुसूसन औरतें, हमारी माँ और बहनें जो भी काम करती हैं, ऐसे मौके मिसाल के तौर पर मस्जिद भी आती हैं, तो मस्जिद को आने के बाद इबादत करती हैं, तो इबादत के दौरान अगर थोड़ा सा फोन लेकर बाहर निकल भी जाती हैं, इधर उधर बात करते फिरती भी हैं, तो लोगों के जहनों में गलत ख्यालात आ सकते हैं। तो ऐसे मौके ना दें लोगों को कि जो है लोग जो है आपके बारे में गलत सोचें, या फिर ये कि आप कोई गलत काम कर सके। इन सारी चीजों से बचना चाहिए। शैतान मुआशरे में लोगों के दिलों में फसाद, फितना, ये ख्यालात जो भी डालता है, ऐसे ही मौके को ढूंढता है
کہ لوگوں کو میں کسی طرح بدنام کروں, لوگوں کی عزت خراب ہو جائے, یہی چیزیں جو ہے انسان جو ہے تلاش میں رہتا ہے. اس لیے کبھی موقع نہیں دینا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, کہ آپ لوگ کسی کی جاسوسی مت پڑیے. آپ کون کیا کر رہا ہے, کون کیا نہیں کر رہا ہے, کسی کے پیچھے پڑنا کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کے کسی آدمی کے پیچھے پڑنا اور کسی کی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا, یہ بہت ہی غلط کام ہے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے جو اس سے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. پھر فرمایا اللہ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کی غیبت نہ کریں. اللہ نے فرمایا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھائے, کیا اس بات کو پسند کرتا ہے؟ جیسے وہ نہیں پسند کرتا اس بات کو, تو ایسے ہی غیبت سے بھی بچنے, غیبت کو بھی ناپسند کرے. تو اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا. اور یہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے, معاشرے میں ایک ایسا ناسور ہے, کینسر کے پھوڑے کی طرح ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھیلتے ہی جاتا ہے. اور معاشرے میں یہ اتنی خراب بیماری ہے کہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے ہم غیبت سے بچیں, اور جو ہے غلط سلط الفاظ سے جو ہے لوگوں کے تعلق سے بات کرنے سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورت میں ایک اور اہم بات بتلائی, وہ یہ کہ ہم نے آپ سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی. لیکن اللہ رب العالمین کے پاس سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ جو آدمی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ جو ہے باعزت ہے. آدمی دنیا کی چیزوں کو اختیار کر کے یہ نہ سوچے, اور جو اچھے لوگ ہیں, دینداری میں اچھے ہیں, ان کا مذاق اڑا کر کے یہ نہ کہے کہ ہم جو ہے اچھے ہیں آپ لوگوں سے. اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں کہہ دیا جو انسان جتنا تقوی اختیار کرتا ہے, اور تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہے, کوئی انسان کسی انسان کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا. اس لیے کسی کے ایمان کو یا کسی کے بھی جو اللہ رب العالمین کے پاس اس کی عزت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس بارے میں جو ہے ہمیں جو ہے فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے. یہ باتیں کچھ باتیں جو ہے اس سورت میں سورۃ الحجرات میں جو ہے بتلائی گئی. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ قاف, جو آج ہماری جو ہے تلاوت شروع ہوئی. سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں جو ہے اکثر پڑھا کرتے تھے, اور کبھی فجر کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس سورت کا جو ہے سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے موضوع کو جو ہے بیان کیا ہے, اور وہ بھی ایسے انداز سے جو کہ حتمی ایک انداز ہوتا ہے, بہت ہی ایسا انداز, بہت ہی سختی کے ساتھ اس کی جو ہولنا کیا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے بڑی سختی سے جو ہے اس سورت کے اندر بیان فرمایا. جیسا کہ جہنم کے تعلق سے فرمایا اللہ نے کہ جہنم سے اللہ رب العالمین کہیں گے کیا بھر گئی تو حل امتلاتی, تو جہنم کہے گی وتقول حل من مزید, کیا اور بھی ہیں, کیا لوگ, کیا اور بھی لوگ ہیں تو ڈال دو. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے جو ہے سختیوں کو جو ہے بیان فرمایا ہے اس سورت کے اندر. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز بیان فرمائی, وہ یہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم انسان کی جو شہرگ ہے اس شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی اللہ رب العالمین انسان کے ہر چیز, ہر عمل اور ہر حرکت کو جانتے ہیں. کالی چونٹی کالی رات میں اگر کالے پتھر پر چلتی ہے تو اللہ رب العالمین کی نظر اس پر ہے. کوئی بھی چیز دنیا کی اس کائنات کی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے بعد کہا گیا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, کہ ہر انسان کے دائیں اور بائیں جو فرشتے ہوتے ہیں جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. فرمایا اللہ نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالتا ہے وہ فرشتے ان ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں. تو انسان کو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے زبان کی حفاظت کے متعلق فرمایا من یضمن لی بین لحییہ وبین خدیہ اضمن لہ الجنہ, کہ جو آدمی مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دونوں رانوں والی درمیان کی چیز شرمگاہ, ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے گا, ضمانت دے گا, تو میں اس کے لیے جنت کی جو ہے ضمانت دوں گا. تو زبان کی حفاظت یہ بہت ہی ضروری ہے انسان کے لیے. گالیاں آج ہمارے مسلم معاشرے کے لیے میں اتنی عام چیز ہے کہ اس کو گالی ہی نہیں سمجھتے ہیں. ماں کی گالی دینا, باپ کی گالی دینا, یا پھر کسی بھی انسان کو پھر اس کی گالی دینا, یہ بہت ہی غلط چیز ہے.
इससे हमारे मुआशरे को, मुसलमान को बचना चाहिए। गाली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान किसी की मां को गाली देता है तो वो गाली पलटकर उसी की मां की तरफ आती है, और कोई इंसान किसी के बाप को गाली देता है तो वो गाली पलटकर उसी के बाप की तरफ आती है। तो यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पूछा था सहाबा से कि देखिए, कोई इंसान जो है अपने माँ बाप को गाली देगा या लान तान करेगा तो कैसे होगा? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, वो कौन आदमी होगा जो अपने माँ बाप को गाली दे, जो अपने माँ बाप पर लान तान करे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी के माँ बाप को तुम गाली देते हो तो वो गाली तुम्हारे ही माँ बाप को आकर लगेगी। तो मुआशरे को जो है, मुस्लिम मुआशरे को इस पर अमल करने की सख्त जरूरत है। अपनी जबान को गीबत से, चुगलखोरी से, गंदी गालियों से, इन सारी गलत चीजों से जो है हमें अपनी हिफाजत करने की जरूरत है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही क़यामत और जहन्नम के जो मनाजिर हैं, इन मनाजिर का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में तज़किरा फरमाया। उसके बाद की जो सूरत है, सूरत-उज़-ज़ारियात, इस सूरत का मौजू भी आखिरत ही के मौजू, इस आखिरत पर ही है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की जो बदफअली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की ख्वाहिशात के लिए एक फितरी तरीका दिया है। अगर इंसान इस फितरी तरीके को छोड़कर मुखालिफ जो जिन्स है उस जिन्स को छोड़कर हम जिन्स परस्ती में अगर पड़ता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब सख्त आता है। ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो लानत होती है और सख्त अजाबात से उन लोगों को जो है दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत का तज़किरा करके इस बात को बयान फरमाया। उसके बाद इस सूरत में एक बहुत ही अहम बात बतलाई गई। अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। इंसान का मकसद हयात, मकसद जिंदगी ही ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ने फरमाया, इन उरीदु मिनहुम मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मैं लोगों से जो ये रिस्क नहीं मांगता हूं, मुझे लोगों को जो इस बात की जरूरत नहीं कि वो मुझे खाना खिलाएं या किसी या कुछ जो इंतजाम करें, बल्कि मैंने इसलिए पैदा किया जिन्नों और इंसानों को कि वो मेरी इबादत करें। हमारी जिंदगी का मकसद बस यही है, हम दुनिया कमाएं, दुनिया खाएं, जिंदगी गुजारें। ये सारी चीजें सानवी दर्जे की हैं, सानवी चीजें हैं। पहला मकसद हम अल्लाह की इबादत करें, यह हमारे ज़हन और दिमाग में जो है हमेशा इस बात को जो है रखना चाहिए। इसके बाद की जो सूरत है, सूरत तूर, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान जो जन्नत में जाएंगे उनके साथ साथ अगर उनकी औलाद नेक होगी, मोमिन होगी, तो वो भी जन्नत में जाएगी, बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, वल्लदीना आमनु वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम ईमान, फरमाया कि अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर उसकी मौत हो गई, मोमिन है, अगर उसके माँ बाप भी मोमिन थे, उन्होंने अपनी औलाद को ईमान की तालीम दी थी, अच्छी बातों की तालीम दी थी, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमाया, वादा किया कि पूरी फैमिली को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह जमा करेंगे। कोई भी इंसान, कोई भी फैमिली एक जगह होती है, अलग अलग होती है, तो यह सुकून का बाइस नहीं है, अधूरी हो जाती है उसके जिंदगी का सुकून। जब पूरी फैमिली एक जगह हो जाती है तो इंसान को हकीकी मानों में सुकून मिलता है। जब जन्नत में जाने के बाद जो कि हकीकी वहां पर सुकून मिलेगा, उसके बावजूद भी इंसान की शायद तमन्ना होगी कि उसकी फैमिली उसके साथ हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि उसका इंतजाम करेंगे कि उसकी औलाद अगर नेक होगी तो औलाद को, वालिदैन को, सबको मिलाकर के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह जमा करेंगे। शर्त यही है कि वो उसके औलाद भी नेक हो, मोमिन हो और माँ बाप भी मोमिन हो। बल्कि इसका मतलब जो बतलाया गया मुफस्सिरीन ने वो ये कि बसा औकात ये होता है कि औलाद जो है आमाल में कम होती है और वालिदैन आमाल में ज्यादा होते हैं ईमान में। तो जन्नत के कई दर्जात हैं, माँ बाप जो ऊंचे दर्जे पर होते हैं, औलाद अगर नीचे दर्जे में होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान करके जो नीचे दर्जे में दो लोग हैं, एहसान करके उनको माँ बाप के साथ भेज देंगे और मिला करके उन लोगों को एक साथ रखेंगे। और बसा औकात ऐसा होता है कि औलाद अच्छे होते हैं अमल में, वालिदैन नीचे होते हैं नीचे दर्जे में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान करके वालिदैन को जो ऊपर उठा करके भेज देंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर से उठा करके नीचे रखा जाएगा, बल्कि नीचे वाले जो लोग हैं दर्जे में, उन लोगों को जो है ऊपर भेज दिया जाएगा। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान होगा। ये मुफस्सिरीन ने जो इस आयत में जो इस चीज को बयान फरमाया। तो गर्ज ये कि हम हमेशा अपनी दुआओं में इस बात को याद रखें, अपनी औलाद को हमेशा ईमान की, तौहीद की और जो इत्तिबा सुन्नत की तालीम भी देते रहें और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस चीज के लिए दुआ भी करते रहें। इंशाअल्लाह जरूर हम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके तौफीक नसीब फरमाएंगे। उसके बाद की जो सूरत है, सूरत नज्म,
اس सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी बयान करते हैं यानी हदीस से मुतालिक एक बात बतलाई। अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी कहते हैं अपनी मनमानी ख्वाहिशात से नहीं कहते हैं। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, बल्कि मोहम्मद वही कहते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है, यानी वही के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी कहा जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहेंगे। कुरान और हदीस दोनों भी अल्लाह की जानिब से वही हैं। कुरान पर अमल करना जितना जरूरी है उसी कदर जो है हदीस पर अमल करना जरूरी है। अगर कोई इंसान, दुनिया में बहुत सारे मुनकिरीन हदीस आए, उन्होंने कहा कि हम हदीस को नहीं मानेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि यह भी वही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक जिस तरह कुरान की हिफाजत करेंगे अहादीस की भी हिफाजत होगी, क्योंकि यह अल्लाह की जानिब से वही है और उसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, तो क़यामत तक अहादीस की जो हिफाजत होगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को अल्लाह ने पैदा किया, उन्हें तौफीक दी। हम देखते हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, उसके अलावा दूसरे मुहद्दिसीन आए, उसके बाद उन अहादीस पर काम करने वाले मुहद्दिसीन बहुत बड़े बड़े आए और उन लोगों ने बड़ा काम किया। तो गर्ज ये कि जितना कुरान पर अमल करना जरूरी है उसी कदर जो है हदीस पर अमल करना भी जरूरी है। किसी एक को भी जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई एक किसी एक को भी इनकार करता है कोई आदमी, तो समझिए कि वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और उसके बाद जो सूरत आई यहां पर, उसके बाद उसी सूरत में सूरत नज्म में एक आखिरी बात बतलाकर अपनी बात खत्म करूं। सूरत नज्म में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि मोमिनीन की एक सिफत अल्लाह ने बतलाई, वो ये कि ये लोग जो है कबीरा गुनाहों से बचते हैं। कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? गुनाहों की दो किस्में हैं, एक कबीरा गुनाह, एक सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह वो है जिसके ताल्लुक से ये वईद आई हो कि दुनिया में या आखिरत में, दुनिया और आखिरत में उसके लिए सजा दी जाएगी। सजा बतला करके अगर किसी गुनाह का तस्करा किया गया तो वह कबीरा गुनाह होता है। तो उलमा ने सिर्फ कबीरा गुनाहों पर किताबें लिखी और बहुत सारे जो कबीरा गुनाहों का तस्करा फरमाया। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश, कि जो लोग कबीरा गुनाहों से और बेहयाई के कामों से बचते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ताल्लुक से अच्छा तस्करा फरमाया। इल्लल लमम, सिवाय सगीरा गुनाहों के। लमम के माने हैं सगीरा गुनाहों के। सगीरा गुनाह ऐसे हैं, इंसान छोटे छोटे कुछ बाज़ गुनाह करता है, वो इंसान की आदत में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद इंसान अगर अस्कार जो है एहतमाम करता है, दुआएं पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, वुजू करता है, तो इन सारी चीजों से छोटे छोटे गुनाह खुद ब खुद धुल जाते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कोई आदमी वुजू करता है तो उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं, यहां तक कि अगर उसके नाखून के नीचे अगर गुनाह है तो वो भी जो है वुजू के साथ जो है झड़ जाते हैं। तो छोटे छोटे गुनाहों के लिए तौबा की जरूरत नहीं है, इंसान तौबा करे, लेकिन जो कबीरा गुनाह है वो कबीरा गुनाहों के लिए तौबा जरूरी है। अगर इंसान कबीरा गुनाह करके अगर मर गया तो फिर जो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब देंगे क़यामत के दिन। तो अल्लाह ने यहां पर बयान फरमाया मोमिनीन के ताल्लुक से कि उन्हें चाहिए कि वो कबीरा गुनाहों से बचें। कबीरा गुनाह इंसान को बाज़ औक़ात इतने इंसान कबीरा गुनाह कर लेता है कि ये सारे कबीरा गुनाह इतने जमा हो सकते हैं कि कल क़यामत के दिन एक पहाड़ की शक्ल अगर बन जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो है उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब हो सकता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि जो आदमी छुप छुप कर हराम काम करता है, हराम काम करता है, हराम चीजों को इख्तियार करता है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके आमाल को जो है लपेट करके उसके मुंह पर दे मारेंगे और उसके आमाल को ऐसे उड़ा दिया जाएगा जैसे पहाड़ों के बराबर उसके आमाल होंगे, लेकिन वो जो छुप छुप कर हराम काम कर रहा होगा, हराम चीजों को इख्तियार कर रहा होगा, लेकिन उसके आमाल की कोई हैसियत अल्लाह के पास नहीं होगी और उसके आमाल को जो उड़ा करके हवा में फेंक दिया जाएगा कि तुम्हारे आमाल की कोई हैसियत नहीं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कबीरा गुनाहों से बचे, हर किस्म के गुनाह से बचे, और जब भी कोई गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको किताब सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के गुनाह से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अल्लाह जिसके घर में जो भी परेशानी है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक
ہم دنیا میں رہیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔